Hello everyone, welcome to Level Up. Now, we will starting with CUET UG exam. As you may be knowing, the notification for CUET UG exam have already been started, and now this is a time when the registration have been closed and the window for correction is almost closed as well. So this is a time period when anyone who wants to undertake their studies, higher studies in undergraduate courses, they are supposed to prepare for the CUET exam to get admitted to all the central universities of the country. CUET UG exam are one of the largest exams conducted all over the India for admissions in all the central universities. Now, there's around more than lakh people attend these kind of courses, these kind of examinations, and therefore it requires very stringent preparation from your side to crack these exams. Right now, CUET exams are also important for you to choose your domain subject. Till now, till 12th, you have been studying a series of subjects. Till 10th, you must have studied all of studied specific subject. Right, 11th, 12th, you have got certain specialization. But now you are going to study one particular subject, your specialization that will determine the course of your future endeavors in that particular subject. Right. So we are particularly starting for history, right? And all those students who are trying to and vouching for history honors in the undergraduate years will be interested in this particular project, right? So, what all can we do to pursue the CUET UG exam for history that we'll be discussing in this particular lecture? This is a very important exam for your career because the course of your career will be determined by this exam, right? Once you have got admission in that particular domain subject, that will later go on to define how will you pursue your future examination, your higher post graduation, or your preparation for competitive exams. Many of the students undertake subjects like history or sociology or political science in order to prepare for competitive exams, right? So even if you are vouching and if you are preparing for these exams, this particular subject will provide you a kind of uh, ladder to undertake that particular course, right? So the idea behind this particular video will be to make you understand the syllabus for CUET UG, right? All those who have studied this subject history till class 12 will be very much aware of that the content of the CUET UG exam because it follows the pattern of your class 12 social science subject, right? For all those of the people who have not studied social science till 12, right? Or perhaps they are not as inclined towards the subject but are undertaking that particular subject for the graduation, right? There will be some sense of kind of recollection of your syllabus. ठीक है, अब हुआ क्या है? In this particular year, there have been a very minute changes that has taken place. Particularly, your syllabus has been curtailed, right? अगर आप लोगों ने जब ये एग्जाम किया होगा 12th क्लास का, you must have studied perhaps 15 chapters, which have now been curtailed to 12 chapters. 3 chapters have been reduced from the syllabus of class 12, right? One from medieval and two from modern history. So now you have to study 12 chapters across ancient, medieval, and modern. These are the three major specialization, and particularly your history will be dealing with Indian history, right? Because this is something you have studied in your class 12, right? So be very much vigilant and be very much instructive regarding what all you have studied in your class 12. उसी के basis पे very large basis of your exam will be based upon that. ठीक है, don't just rely upon NCERT but go into the broader thematic. ठीक है, what is the topic that is covered and what all can be covered within the ambit of that theme. ठीक है, so based on that you will be कहते हैं asked to perform, right? Now you will be asked 50 questions in 45 minutes, out of which you have to attempt 40 questions, right? For each right answer you will be given 5 marks.
who is wrong answer, you will be deducted -1, right? So guessworks should be curtailed. There can be calculated guess on the basis of sometimes students are not able to recollect or are not sure about the subject, and in that cases you can use क्या कहते हैं logical guess, right, based on your क्या कहते हैं certain logical framing, ठीक है, based on options that are prevailing by reducing and deducing the options, but बिल्कुल तुक्का नहीं मारना, ठीक है. If you don't know the answer, try to avoid the question, right? Don't try to curtail your own marks by making wild guesses, right? So we'll try to understand कि किस तरीके से आप लोग हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर सकते हैं. Your exam will start for most probably the tentative date sheet is between 8th May to the first week of June. ठीक है, 8th May to 1st June के बीच में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा. So you don't have a very big gap. You don't have much time to prepare for your exam. So whatever time you get in this regard, you can basically, you have to make the best use of that particular period. ठीक है, so we'll be discussing each and every subtopic. What all can you expect from these topics and what all is there to prepare. कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. So as I told you that there will be 50 question out of which you have to attain 40. ठीक है, तो अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो for each right answer 5 marks, which means that total of 200 numbers will be awarded to you. ठीक है, now your syllabus, as I told you, include 12 chapters. 4 chapters from ancient history, 4 chapters from medieval history, and 4 chapters from modern history, right? So the time period that is followed is from Harappan period till the Indian independence. ठीक है, so broadly the time period that is following is from 2600 BC to 1950. ठीक है, till the making of the constitution. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब तक आपका पूरा पीरियड कवर इसमें किया गया है, राइट. एंड a lot of these themes, topics that are there in the history book, they are not chronological, they are thematic. तो आप लोग जो टॉपिक दिए गए हैं, they are not chronologically arranged but rather thematically arranged. ठीक है, there are lot of gaps in between, there are lot of things that are perhaps you will find missing. ठीक है, क्या आप बोलोगे कि ये वाला टॉपिक कहाँ है, बिकॉज your syllabus is designed in a way to provide you certain kind of historical narrative. ठीक है, एक बैलेंस आपको दिया गया है. So when you particularly when you study the ancient historical period, you will see that they apart from the first chapter जो हड़प्पन पीरियड है, हड़प्पन पीरियड इज द पीरियड जो आप लोगों को लार्जली जो है मेच्योर हड़प्पन फेज 2600 BC to 1900 BC and then late Harappan from 1900 to 1300 BC. This is the time period that they have covered. Other than that, all the other 3 chapters that you will be discussing caters to the same time period, 600 BC to 600 CE. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है 1200 साल का, that is basically covered in all the other 3 chapters. ठीक है, first second chapter will be dealing with political history, third chapter will be dealing with the social history, and the fourth chapter will be dealing with the cultural and religious history. ठीक है, तो इस तरह से थीमेटिकली अरेंज किया गया है. सिमिलरली when you deal with the medieval history, the chapters that you will be studying include the sources. ठीक है, the Vijayanagar Empire, right, the Bhakti movement, the Mughal period. ठीक है, तो when you study this period, आपको ऐसा लगेगा कि there are lot of things chronologically कई चीजें नहीं वो आपको समझ में आएंगी, because Vijayanagar happens in southern India in 14th to 16th century, and the Mughal period it starts from 16th century. The sources that you deal with are from 10th 11th century to till the 15th 16th century. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली थीमेटिकली अरेंज है. अगेन, राइट, Bhakti movement is a socio-cultural history. When you are dealing with the Mughal history, you are dealing with the essence of political history. ठीक है, agrarian history. ठीक है, agriculture पे focus किया गया है. When you deal with Vijayanagar, you will studying again the creation of the Hampi as a site. Right, उसमें आपको political, economic, socio-cultural सब कुछ मिलेगा. Right. So this is how they have arranged the syllabus of medieval.
And modern, basically, they have dealt in the context of the social system, the socio-economic system in terms of permanent settlement, Rayatwadi, Mehalwadi, and then moving on to 1857 revolt, the colonization, and the Gandhian movement. ये गांधीयन मूवमेंट के बाद दे मूव ऑन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1857 से दे विल जंप टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. एंड इस तरह से जो है आप लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक पूरा 1950 तक का पूरा पीरियड कवर किया. इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है फॉर स्टडिंग सोशियो कल्चरल हिस्ट्री, राइट. बेसिकली इट लार्जली लूम्स ओवर द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन. ठीक है. कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन इज द थीमेटिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू understand the syllabus of CUET UG. Right. Now, the first chapter, in ancient history, it's called the कहते हैं हड़प्पन आर्कियोलॉजी. और बेसिकली जो आपको चैप्टर दिया है ब्रिक स्पीड एंड बरियल्स, राइट. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज योर फर्स्ट टॉपिक, राइट. हड़प्पन, अगर आप लोग स्लेव अपना एनसीईआरटी देखें, डोंट जस्ट रिलाई ऑन एनसीईआरटी बट रादर स्टडी ऑल द अदर मटेरियल. जो आपका क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी एमसीक्यू टाइप. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कैन नॉट बी आंसर्ड थ्रू एनसीईआरटी. यू हैव टू लुक एट द लार्जर फ्रेमवर्क. ठीक है. तो बेसिकली हड़प्पन हिस्ट्री जो है यू मस्ट हैव स्टडीड अर्लियर एज वेल. पर्टिकुलरली आप लोगों ने 6th क्लास में हड़प्पा जो है पढ़ा होगा. उसके बाद सीधा आप लोग यहाँ पर जाके पढ़ेंगे. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू परहैप्स रिमेंबर. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना इज बेसिकली आर्कियोलॉजी. दिस इज वन पीरियड फॉर विच यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कियोलॉजी. वाई? बिकॉज दिस इज अ प्रोटो हिस्टोरिकल फेज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है लिटरेरी सोर्स, बहुत ज़्यादा क्या आपको हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेरी सोर्स एज सच देखने को नहीं मिलेंगे. You basically rely upon the archaeological sources for understanding this particular period. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा जो है you will be emphasizing upon the archaeological sources. तो इसमें आपको लोगों के लिए क्या important है? Firstly, how do we know what we know? This is the first thing that will be part of our understanding, which is how historians reconstruct history. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को जो पता है, how do we know it? How हड़प्पा were discovered. ठीक है. तो there are two things. First, हड़प्पन साइट्स कैसे डिस्कवर हो रही है और वहां से आपको क्या क्या मिल रहा है, which are the prominent हड़प्पन साइट्स. ठीक है. तो आपको 7-8 प्रोमिनेंट साइट जो है याद रखनी है, राइट. तो कौन कौन सी साइट आपको याद रखनी है? यू हैव टू रिमेंबर हड़प्पा, यू हैव टू रिमेंबर मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ठीक है, लोथल, कालीबंगन, बनावली, गुजरेनवाला, सुरकोंडा, ठीक है, सुतका गेंडोर, चुनहदड़ो, right, Rakhigadi. These are some of the sites that you need to remember from an exam perspective. They basically इन sites में से कोई ना कोई reference आता ही है. ठीक है. Particularly you will be able to understand Harappa and Mohenjo-daro in a very significant way because Mohenjo-daro में जो findings मिली हैं, ठीक है, be it the Great Bath, the Dancing Girl, या आपको sites like आपको कि धौलावीरा से क्या मिलता है, ठीक है, आपको अगर क्या कहते हैं बॉर्डर रिजर्वॉयर्स मिलते हैं तो वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है. और इफ यू फाइंड सिटाडेल एंड लोअर टाउन कौन सी साइड से क्या मिल रहा है, राइट. So basically this particular topic deals with archaeological sources and how Harappan civilization has been unearthed. ठीक है. तो from starting जिसे कहते हैं अर्ली हड़प्पन फेज 6000 BCE till the late Harappan, the decline of Harappa and the different theories that are given in the context of defining the Harappan decline. तो उसमें आप लोग कुछ स्कॉलर्स के नाम भी आप लोग को बीच बीच में आते रहेंगे. 2-3 मेजर स्कॉलर दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. अलेक्जेंडर कनिंगम कॉन्स्टेंटली रेफरेंस आता है. अलेक्जेंडर कनिंगम एंड जॉन मार्शल, दीज आर द 2 स्कॉलर्स which will be referred throughout the ancient historical period. तो ये चीज़ें अगर ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो it will be very beneficial for you. ठीक है. तो you will be discussing this particular thing. Then we have all the other kind of scholars, चाहे वो जॉन डेल्स हो, केनोयर हो, कैनेडी हो, ठीक है. ऑल these scholars आप लोग के इनको नाम मेंशन किए गए हैं. Then the
थ्योरी ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन एंड कैन वी कॉल इट अ डिक्लाइन। ठीक है, हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ और मॉडर्न टाइम में उसको कैसे रीडिस्कवर किया गया, ये सारी चीजें आप लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। राइट, तो देयर विल बी 7 to 8 सब टॉपिक्स। राइट, starting from the major site, the extent of Harappan civilization, first thing. Second thing, the agrarian pattern, the livestock of Harappan civilization, how basically they were living, agrarian conditions, agriculture क्या होता था, consumption क्या होता था, all these kind of things. Third, settlement pattern, which means basically how the areas were developed, how the settlements were developed. ठीक है, what are the kind of civil amenity that were provided, drainage system हो गया, urban plant system हो गया, ठीक है, all these things. Then we have public structures, ठीक है, इसमें ग्रेड बात भी आएगा, ग्रेनरीज भी आएंगी, रिजर्वॉयर्स भी आएंगे। राइट, देन वी विल डिस्कसिंग बरियल्स, बरियल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो burials and what are the grave goods, what are the goods that are found from these burials, ये अपने आप में आप लोगों का एक टॉपिक बन जाएगा। राइट, तो आफ्टर दैट विल बी डीलिंग विद द हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पा की क्या स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, what are the important elements and how it has not been deciphered as of yet. Then we will come to the craft production। ठीक है, क्या क्या उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, what all the raw materials were being used in making of the Harappan seals and sealings and designs। ठीक है, what kind of artifacts were created, what were the raw materials, steatite क्या होता है, fiance क्या होता है, ठीक है, what are the shape of size and were used in Harappan artifacts। Then we'll move on to Harappan interaction with the outer world। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा की जब हम बात करते हैं, what are the areas that were known in the outer world in the context of हड़प्पा। तो उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इंक्लूड होता है, वी बी इट द आहार कल्चर, कयात कल्चर और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। राइट, एंड देन वी हैव आउटर इंडिया, वी हैव मेसोपोटामिया। ठीक है, we have countries like Dilmun or Bahrain, Oman, all these areas from which Harappan interaction or Harappan trade has been found। ठीक है, then we will move on to discussing Harappan decline, what are different theories of decline। ठीक है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी particularly, ठीक है, कि was it an invasion और क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, that will be discussed। ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है। देन हड़प्पन डिक्लाइन से हम लोग इसको इवेंचुअली विल फिनिश द टॉपिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक तरीके से हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को जो है हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, देन आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, we will move on to the second topic। Second unit is political and economic history, how inscriptions tell a history, a story। ठीक है, as I told you that the period that is covered within this ambit is 600 BCE to 600 CE। Why this particular period has been chosen? ठीक है, और बीच का पीरियड क्यों खा गए? ठीक है, after the decline of Harappan civilization and the 600 BC। Why 600 BC? ठीक है, क्योंकि हड़प्पा इज अ साइट जो क्या कहते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ 600 BC इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, बीच का जो पीरियड था वो था वैदिक सिविलाइजेशन, एंड वैदिक सिविलाइजेशन इज नॉट एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज अ रूरल सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जब आप इसमें देखते हैं 600 BC में देखते हैं, वो सब एलिमेंट्स आपको रिटर्न होते हुए दिखते हैं जो आपको पहले हड़प्पा में दिखते थे, लाइक द एविडेंस ऑफ राइटिंग। राइट, जो राइटिंग आपको मिलती है हड़प्पा में, वैदिक सिविलाइजेशन वाज मोर ऑफ ओरल कल्चर, वैदिक टेक्स्ट वर कंपोज बट नॉट रिटन डाउन एट दैट पीरियड। राइट, तो यू फाइंड एविडेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, यू फाइंड अर्बन कल्चर, यू फाइंड सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ दैट काइंड। ठीक है, जो आपको हड़प्पा में देखने को मिलती है। तो वी विल मूव ऑन टू डिस्कस कि व्हाट इज ऑल हैपनिंग from 600 BC to 600 CE। That is a very long period of 1200 years। इसके बीच में आपको अगर पॉलिटिकली देखे जाए
तो देयर विल बी अ लॉट टू डिस्कस। ठीक है, आप लोग के जो है 16 महाजनपद भी हैं, मौर्यन भी है, पोस्ट मौर्यन भी है, गुप्ता भी है। ठीक है, एंड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्त बेसिकली एंड द वैदिक द 600 सी, ठीक है, आपका एंशियंट पीरियड को कंप्लीट करती है एंड दैट स्टार्ट द अर्ली मेडिवल पीरियड। बट हम लोग जो यहाँ पे जो है अपने आप हमारा सिलेबस जो है कंपैरेटिवली लिमिटेड है। ठीक है, यू विल बी पर्टिकुलरली डिस्कसिंग सर्टेन पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका फोकस किस चीज पे होगा? 16 महाजनपद, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी मगध। राइट, मगध इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मगध विल बी द ओनली स्टेट दैट विल इमर्ज एज एन एम्पायर। ठीक है, तो हाउ अमंग द 16 महाजनपदस, ठीक है, मगध वाज एबल टू इमर्ज एज एन एम्पायर। एंड ठीक है, और फिर मगध से कैसे आपको मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है कि मगध से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ। तो मौर्यन एम्पायर विल डिस्कसिंग, विल डिस्कसिंग द महाजनपदा, विल डिस्कस मगध इन स्पेसिफिक, मौर्यन, और उसके बाद जो है हम लोग अशोक वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करके वी विल मूव ऑन टू द सदर्न इंडिया, कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सदर्न इंडिया। और सदर्न इंडिया में आप लोग तमिलकम एंड द कहते हैं जो आपको संगम पीरियड है, संगम पीरियड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन class of people like the Gehpatis. ठीक है, Gehpatis is a very important social group that emerges during the second urbanization. Now, 600 BC is called second urbanization for a specific reason, because we see the re-emergence of urban centers, we see a re-emergence of trade, we see a very strong emphasis on uh, agrarian surplus. ठीक है, तो नए जो है मर्चेंट क्लास इमर्ज कर रहे हैं, तो विल बी डिस्कसिंग गेहपति, द क्राफ्ट गिल्ड्स, क्राफ्टमैन कैसे इमर्ज कर रहे हैं, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द रोल ऑफ गिल्ड जिसको श्रेणी कहते हैं, राइट, द रोल ऑफ श्रेणीज और गिल्ड्स। ठीक है, ऑल्सो वी डिस्कसिंग हाउ द कहते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स इवॉल्व। ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द inscriptional evidence that we find from this period. ठीक है, तो this is also the period when we find significant amount of inscriptional evidence. ठीक है, और पर्टिकुलरली आपको इंस्क्रिप्शन आप इसमें फोकस किया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शन। राइट, अशोकन इंस्क्रिप्शन में क्या है? अशोकन इंस्क्रिप्शन बेसिकली डील्स विद अशोक, जो राजा अशोक ने लिखवाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन आर वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस रिटन during this ancient period. ठीक है, और they are deciphered, लेकिन we have to also discuss the process through which this decipherment happened. ठीक है, तो how did the script was deciphered, right? So how a Britisher named James Prinsep was able to decipher an Indian script that Indians were not able to decipher. ठीक है, तो आपको दो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मिलते हैं यहाँ पे, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। राइट, तो ब्राह्मी और खरोष्टी को किस तरह से डिसाइफर किया गया एंड हाउ वी वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के बेसिस पे हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक पीरियड। तो इसमें क्या क्या सब टॉपिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द महाजनपद, 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद कौन कौन से हैं? इनमें जितने भी सिग्निफिकेंट महाजनपद हैं, फ्रॉम मगध टू अवंती टू कौशल टू मल्ल टू चेदी टू व्रजी, राइट, शूरसेनी, अश्मक, राइट, अंग, ये सारे जितने महाजनपद है, षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद अलॉन्ग विद देयर कैपिटल, राइट, that will be discussed in this context and how these Mahajanpadas emerge and how, why do we see a preponderance of कहते हैं significant number of Mahajanpadas located around the Gangetic Valley. गंगा घाटी पे क्यों इतने ज्यादा आपको जो है इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं? ठीक है, ये चीज आप लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस एक आपको एक सब हेडिंग आती है
Why was Magad able to emerge as an empire? तो उसने आपको 4-5 मेजर फैक्टर दिए हुए हैं. They have given you a political factor, they have given you economic factor, they have given you technological factor. ठीक है, कि technical factors में you will be discussing the availability of iron to make swords. ठीक है, the availability of elephants for war purpose, the available amount of basically forest for timber, right? And the availability of rivers for transportation, the availability of uh, a very fertile land for agrarian surplus, and the presence of very significant rulers who provided a political expansion of the period. All these factors, the mix of political, economic, socio-cultural factors that led to the emergence of Magad as an empire. And then the next theme is the emergence of the Mauryan Empire. Mauryan Empire कब emerge होता है? 4th century BC, right? 4th century BC, we see the emergence of Mauryan Empire. They have not discussed any ruler in very specific. अशोक का रेफरेंस आपको बार बार आएगा, and the two epithets that are associated with him, Devanampiya Piyadasi. ठीक है, तो when James Prinsep decipher the script, he is talking about the Devanampiya, देवों के प्रिय, Piyadasi, Priyadarshi, right? The one who is beloved of the god, one who is very good to look at, right? He is identified as Ashok. So Ashok is referred. Chandragupta Maurya, who is the founder of Mauryan Empire, right? And the references to अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र was a text जहाँ से आपको references significantly मिलते हैं about the working of the political structure of the Mauryan state. कि how Mauryan state is supposed to run, right? So what all are the elements of the state? How the political and army was maintained during this period. ठीक है, all of this will be discussed. Then we will move on to the economic structure. में आपको the class structure देखने को मिलेंगे, गृहपतिज, the guilds, the merchants, all these the agrarian classes, all these groups will be discussed. Then we will move on to discuss the Tamilkam, the southern Indian structures. ठीक है, the Sardar that were emerging, the feudal lords that were emerging in this context. ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करके एंड फाइनली द डिसाइफरमेंट ऑफ ऑल दिस इंस्क्रिप्शन. ठीक है, हाउ ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, दीज आर द टू स्क्रिप्ट. ठीक है, तो ब्राह्मी कैसे डिसाइफर की? जेम्स प्रिंसेप ने, राइट? एंड खरोष्ठी कैसे डिसाइफर की गई? इन द ईयर 1838. ठीक है, हाउ दीज स्क्रिप्ट्स वर डिसाइफर्ड, बट इट वाज इजियर टू डिसाइफर खरोष्ठी बिकॉज there were bilingual coins written in Aramaic and Greek and Kharoshthi script. So those who knew Greek or Aramaic, they were able to read, match the letters and able to decipher the script. ठीक है, Brahmi was a language that was comparatively different because there was no reference point as such. ठीक है, but because many of the letters of the Brahmi script are very similar to what we use in Devanagari. ठीक है, through basically it was they were able to decipher the script of the Harappa of the Ashokan inscription, and how it opened the vistas to understand the historical project, the history of this particular period. तो ये सारी चीजें आप लोग किसमें डिस्कस करेंगे? यू विल बी डिस्कसिंग इन द सेकेंड चैप्टर. ठीक है, तो एंड लास्टली विल मूव ऑन टू डिस्कस द लैंड ग्रांट चार्टर्स ऑफ द गुप्त पीरियड. तो गुप्त पीरियड क्या है? 4th century. जैसे मैंने बोला कि इफ द Mauryan Empire was the starting point of the state politics in India, Indian subcontinent, Gupta was the end of the ancient period, right? So what happened in the context of the Gupta period? So 2-3 major inscription. One is the Prayag Prashasti. ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई बेसिकली बाय हरिसेन. ठीक है, वो जो है लिख रहे हैं रिगार्डिंग द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त एंड पैनेजेरिक यूलॉजी ऑफ द किंग. ठीक है, दूसरा आपको मिलता है प्रभावती गुप्त. ठीक है, चंद्रगुप्त की जो बेटी थी, द गुप्त रूलर चंद्रगुप्त, उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, ही शी इशूज द लैंड ग्रांट चार्टर्स. तो लैंड ग्रांट चार्टर्स में जो है लैंड डोनेट की जाती थी, उसका आपको नैरेटिव मिलता है. हाउ दीज texts are able to enable us to understand the
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये भी देखने को मिलता है दैट rulers were not the only one who were issuing these inscriptions. At some cases, जैसे आपको मंदसौर इंस्क्रिप्शन मिलता है, that was issued by the ivory merchant. ठीक है, जो मर्चेंट थे उन लोगों ने जो है ये इशू कराया था when they basically give any donation. ठीक है, जब भी कोई डोनेशन कर देते, कोई पैट्रोनाइज करते थे, तब वो लोग जो है इंस्क्रिप्शन लगवाते थे। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस एंड हाउ देयर रोल इन हिस्ट्री मेकिंग, ये सारी चीजें जो हैं आप लोग को सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर डील्स विद द सोशल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ठीक है, सोशल डायनामिक्स कैसे थे ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। Why is it so important? Because यहाँ पे जो आपको रेफरेंस पॉइंट मिलता है दैट इज महाभारत। राइट, महाभारत इज द reference point of this particular period. So it refers to a particular version of Mahabharata. So it starts with the description of how basically Mahabharata was composed, not in ancient period but in modern period. Right. So there are multiple versions of Mahabharata prevalent in different parts of the country. So how to create a unified Mahabharata manuscript, because Mahabharata is considered to be the largest text of the world. It's an encyclopedic work which is immensely composed. It is composed in immense manner, going up to 1 लाख श्लोकस। ठीक है, तो इतना बड़े टेक्स्ट को आप लोग कैसे जो है डिसाइफर करेंगे? इट वाज अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, राइट। इट वाज अंडरटेकन बाय अ पर्सन कॉल्ड वी.एस. सुक्तांकर। So V.S. Uktankar is writing this particular what you call a critical edition. Critical edition is the edition which basically incorporates all the problems that are there in different manuscripts of a particular text and create a unified volume. ठीक है, so it was a long project and took 47 years to complete. So it started off in the year 1919 and it got published in the year 1966. Right. So 47 years of the time period was undertaken in this project. ठीक है, so what is now on the basis of महाभारत as a text? तो ये आपको पुणे भंडारकर जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है वहां पर आपको बोरी में आपको मिलेगा, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, so how was this particular text important to make us understand the social structure of this period? And this particular जो chapter is more thematic in nature. अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, there were certain elements of political history. Now this particular chapter will be dealing with social history. There will be a lot of important things regarding the years of publication of the work or the archaeological excavation undertaken regarding the sites of Mahabharata. But other than that, there are certain conceptual categories that are more significant in this particular chapter. आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेट्रिलिनी क्या होती है, पेट्रिलिनी क्या होती है, पेट्रियार्की, पेट्रिलोकालिटी, पेट्रिलिनियलिटी, राइट, मेट्रोनिमी, polyamorous, polyandry, right? All these concepts have been discussed in this particular chapter. ठीक है, it is comparatively easier, ठीक है, because it refers to the textual sources. It refers considerably to the textual sources. ठीक है, तो यहाँ से क्या शुरू होगा? Starting it starts with the idea of kingship. Kinship, ठीक है, what is kinship? What is a kinsman? ठीक है, clans क्या होते हैं, right? Tribes क्या होती हैं? Family, right? How family as a unit is understood. How do we define a kinship group having a kind of family of common origin, right? So when we say Mahabharat, Mahabharat is a fratricidal conflict between two kinship groups. ठीक है, they both belong to the same family, larger family was the same kinship group, same clan. ठीक है, they both belong to the Kuru clan, right? So how the fratricidal conflict reflect the kinship struggle, the kinship group. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी आर
patriarchal. That means the leaders, the head of the family will be a male. Also, they are also patrilocal and patrilineal, which means that the lineage will be कहते हैं transferred from father to son. Also, it is the women who is supposed to be shifting his house home from one place to another rather than the men. Except for regions like Kerala and Meghalaya, we don't really find the evidence of matrilineality, right? So, all these concepts are reflected in the text of Mahabharata. Okay. We also find certain aspects related to marriage, like we find polyandry, and we also find polyamorous, right? Polyamory is basically polyamorous relations is when one man marries more than one woman. Polyandry is the concept where one woman is married to many men, right? So we have a very important example of Draupadi in the Mahabharata, where we find evidence of polyandry. Polyamorous is basically very common. Arjun had 4 wives. Okay, we have different references to people having multiple wives, right? As related to the kinship group, we generally find patrilineality. Lineage is always through the father, but we do find evidences of matrilineality in Indian political structure. इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दिया जाएगा सातवाहंस का, ठीक है, कि हाउ बेसिकली सातवाहंस वर फैमिली दैट टुक देयर नेम ऑफ देयर मदर, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वेरी सिग्निफिकेंट, राइट. Then after that, when we discuss all these marriage forms, हम लोग we will discuss the 8 forms of marriages that are कहते हैं discussed in ancient Indian text. तो आप लोगों को 8 तरह की शादियों का जिक्र मिलेगा, and how the first 4 are considered to be good marriages, last 4 are considered to be bad marriages. So we have देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, मनुष्य विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, right? Also, how economic resources are distributed among men and women. Do women have a property right? Do women have economic right? That itself is a point of question, point of contestation. ठीक है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्या वो करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन, ठीक है, the Stridhan is basically designated for women, but what it constitutes is basically wealth that he has derived from his family. Okay, so that reflects the kind of socio-economic and cultural difference that exists between men and women in the society, right? So social structures आप लोगों को इसी इन सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में लगातार देखने को मिलते हैं, right? Now when we talk about the social life, do these texts, the description that we find from these texts, match the archaeological sources, archaeological findings that we got from excavation? So, उस context में, when we say Hastinapur, Hastinapur is a very major site that is mentioned in the Mahabharata. ठीक है, 1951-52 we find B.V. Lal, ठीक है, who excavate the region of Hastinapur, which is now in Meerut. ठीक है, and what kind of archaeological things that he discovers from this site, ठीक है, basically we do find mud brick houses, we find potteries, we find utensils, all these things are reflected in this particular text, ठीक है, excavation, ठीक है. तो perhaps the textual sources का जो grandeurs है वो शायद आपको आर्कियोलॉजी में ना मिले, ठीक है. So basically many a time the kind of temporality or kind of things that are reflected in the textual sources are not found in the corroborated in the archaeological source. तो जब भी हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, तो we have to corroborate the textual sources with the archaeological sources. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो कास्ट, क्लास, तो कास्ट में आप लोगों को कास्ट का एक कॉन्सेप्ट आएगा. कास्ट में आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, द रूल ऑफ चांडाल्स, ठीक है. रूल ऑफ चांडाल वैली वॉज वेरी सिग्निफिकेंट. उसमें आपको रेफरेंस आते हैं इन 2 ways. What Huen Sang etc. mentions about the rule of Chandal, that they have to clap every time they go on the street because they are not supposed to
be seen by anyone else, right? So they are considered to be अस्पृश्य, the people who are untouchable. ठीक है, तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट सिस्टम देर आर कास्ट, देर वर्ण व्यवस्था है. ठीक है, तो वी हैव ब्राह्मण, वी हैव क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र that are mentioned in the Purush Sukta of Rigveda, right? But there are also classes who don't fall into this fourfold order. So we have people who are called Antyajas, right? Who are not part of the Varn system. These include the hunter, the Nishadas, ठीक है, or the Chandalas, or basically the tribal classes, right? So they are all those, and also we have categories who are not able to speak Sanskrit, right? We are called Malechas, right? So all those social categories within the caste system and beyond the caste system is something that is important for our understanding of this particular period. So what we will be discussing, we'll start with kinship group. We'll go on to discuss the marriage idea of marriage and men and women gender aspect. Then we'll be discussing the caste aspect, right? What are the different caste groups and what are the classes who are not part of that caste group? Okay, all of this and the archaeological excavations of the Mahabharata and that timeline. Okay, all of this will be part of your third chapter. ठीक है, थर्ड चैप्टर पे आप लोग ये सारा चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ द फोर्थ चैप्टर इज बेसिकली योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ Buddhism and Jainism. ठीक है, दिस इज हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस हिस्ट्री. ठीक है, दिस इज अ मच मोर ब्रॉडर टॉपिक. ठीक है, इसमें आप लोगों को बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ऑल्सो यू विल बी डिस्कसिंग द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट पीरियड, राइट? So this is basically more of a cultural history of this of the ancient history. ठीक है, so it starts with an understanding of how do we understand the cultural history, and it is through religious structure. ठीक है, so we find references to stupas. ठीक है, so stup is a religious structure of the Buddhist people. ठीक है, और इसमें आपको बहुत significant reference आता है सांची स्तूप. Why Amravati Stoop was destroyed due to the colonial intervention, but Sanchi Stoop was to remain intact. It was because of the intervention of the local ruler. So the queens of Bhopal, Shah Jahan Begum and Shah Jahan Begum, they didn't allow the Sanchi Stoop to be taken away the way Amravati Stoop was taken away by the Britishers to the London Museum. ठीक है, so very significantly we find that Sanchi stupas are very significant symbols of the religious history of a particular period. ठीक है, उसी context में we will try to discuss the history of Buddhism and then Jainism. So Buddhism, how it or religions कहते हैं develop. ठीक है, what is the origin of this religion, what are the different precepts of Buddhism, right? What are different textual sources that are associated with Buddhism. ठीक है, you will find references to some of the significant textual sources. ठीक है, particularly the Tripitakas. ठीक है, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेगी, राइट? When you deal with this particular source, ठीक है, we are trying to understand the period in the context of the religious changes, social religious changes जो आपको इस टाइम पे देखने को मिलता है. Why Buddhism and Jainism are considered to be Protestant religions, the religions which are considered to be Gnostic group. ठीक है, Gnostic religion, which means that they don't have faith not in God, but rather not in the Vedic sources, not in the kind of Karam Kandas. So the kind of social religious tradition that were developing in the 6th century BC, which led to the formation of Buddhism and Jainism. ठीक है, तो किस तरह के प्रिसेप्ट्स आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, हुआ द प्रोमिनेंट पीपल. आपको त्रिपिटक भी देखने को मिला, देन यू फाइंड रेफरेंस टू द जातक्स. ठीक है, you will find reference to Punna, you will find references to the Bodhisattvas, right? And how Buddhism was able to spread across the Indian subcontinent and beyond. ठीक है, इंडिया के बाहर कैसे बुद्धिज्म फैला, एंड हाउ इन टुडेज टाइम
बुद्धिज्म इज द थर्ड बिग लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। देन द सेम विल बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है, द मेजर हु वाज द फाउंडर, महावीर। महावीर एंड बुद्ध वर कंपेयर बेसिकली कंटेम्प्रेरी, राइट। तो व्हाट वर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, ये आपको जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, राइट। व्हाट आर डिफरेंट प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो जैनिज्म में क्या प्रिसेप्ट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट, द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। उसमें आपको जो है बुद्धिज्म में भी ये एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है। इट ऑल्सो टॉक्स सिमिलरली त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म। जैनिज्म में आपको देखने को मिलता है अस्तेय, ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टील, यू डोंट हैव टू डू वायलेंस, यू डोंट हैव टू, अपरिग्रह भी है, ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टोर योर वेल्थ, राइट, you have to follow brahmacharya, all these elements of Jainism, ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, अ काइंड ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन वी विल डीलिंग विद द डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल। तो स्तूप का तो है ही आप लोग के पास। फर्स्टली वी स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर ऑफ स्तूप, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, हाउ स्तूप डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। So it started from a chaitya, which was a rectangular structure, and how it acquired a hermika, then an and, right, chhatra, it acquired a gopuram, it acquired a pradakshina path, right. All these kind of क्या कहते हैं, how स्तूप actually became a large structure from a modest beginning, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उपासना स्थल, बीट चैत्य, बीट विहार, ठीक है, and the cave architecture in Ajanta, ठीक है, all these are symbols of religious architecture, right. So similarly in Hinduism we see Vaishnavism and Shaivism, तो उसमें आपको टेम्पल आर्किटेक्चर 3 सिग्निफिकेंट तरीके से देखने को मिलता है, द नागरा स्टाइल, द द्रविड़ स्टाइल एंड द विसार स्टाइल, राइट। तो हाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर डेवलपिंग, केव आर्किटेक्चर वर डेवलपिंग, तो आपको केव आर्किटेक्चर में रेफरेंसेस मिलेंगे ऑफ द महाबलीपुरम, ठीक है, वेयर यू फाइंड द पेनंस, द ग्रेट पेनंस रिलीफ, राइट, जहाँ पे अर्जुन जो है तपस्या कर रहे थे शिव जी से टू गेट पाशुपात अस्त्र, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड ऑन लार्ज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो ये सारे जो रिलीजियस रेफरेंसेस हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द 4th चैप्टर, ठीक है। तो 4th चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक होंगे, स्तूपस, द फाउंडिंग ऑफ स्तूपस एंड हाउ इट वाज प्रिजर्व, ठीक है। देन बुद्धिज्म, द प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, द फाउंडिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड द expansion of Buddhism. Then Jainism, the precepts of Jainism, the origins of Jainism and the expansion of Jainism. Then क्या कहते हैं, different kind of textual sources of Buddhism, Jainism, right? The religious kind of traditions, art and architecture, stupa architecture, the cave architecture, the temple architecture, all of this will be studied in the ancient period. तो इसके साथ जो है आपका ancient वाला portion कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंशिएंट का पोर्शन आपके इसमें 4 चैप्टर आपको मिलेंगे, राइट। फिर आपको मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अब मेडिवल जो हिस्ट्री होगा, दैट आल्सो हैज 4 चैप्टर, ठीक है। आप लोग के जो है सोर्सेज से शुरू होके ये जो है रीजनल हिस्ट्रीज की बात करेगा, ये विजयनगर एम्पायर की बात करेगा और मुगल हिस्ट्री की बात करेगा, ठीक है। व्हाट इट डजंट टॉक अबाउट इज बेसिकली लॉट अबाउट दिल्ली सल्तनत का कोई आपको जिक्र इसमें नहीं मिलेगा। अर्ली मेडिवल विल नॉट बी डिस्कस इन अ सिग्निफिकेंट वे, ठीक है। तो 1 रीजनल हिस्ट्री, 1 पैन इंडियन हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री, ठीक है, 1 सोशो रिलीजियस हिस्ट्री एंड 1 ऑन सोर्सेज। ये 4 तरह के आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद द ट्रैवलर्स अकाउंट, तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद हाउ हिस्ट्री वाज सीन, हाउ डिफरेंट ट्रैवलर्स wrote their own accounts, और उनसे हमको उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में क्या जानने को मिलता है, ठीक है। अभी तक क्या था, जैसे हमने बोला कि एंशिएंट पीरियड में द मेन सोर्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग वाज थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, या फिर संस्कृत टेक्स्ट के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें पता चलती है।
नाउ अब क्या होता है, after in the medieval period we see textual sources acquiring even more importance. आप लोगों ने जब 11th में पढ़ा होगा, you must have read the other topics, the emergence of writing, जो आप रोमन एम्पायर पढ़ा होगा, या फिर the emergence of तवारीख ट्रेडिशन, the writing of historical traditions, ठीक है, उसी का आपको एक्सपेंशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगा, राइट। तो व्हाट ऑल इज देयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसमें सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स came to India during the medieval centuries and what account they that did they leave during this period. तो आपको इसमें prominent जो है कौन मिलेंगे, आपको 3-4 मेजर स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको दिया है अल बिरूनी, then we have Ibn Battuta and we have Bernier, right? We have they have mentioned many other scholars as well, ठीक है। आपको चाहे वो तेवर्नियर हो, चाहे वो मार्को पोलो हो, राइट, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, निकोलो कॉन्ती हो, ऑल ऑफ दीज विल बी रेफर्ड टू इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप लोग जो हैं मेडिवल के ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर ऑफ दीज नेम्स, ठीक है। डोमिंगो पेस, all of these will be discussed. So what are the major scholars who have who basically were discussed in this context, ठीक है। तो ये शुरू होता है बेसिकली कि कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, कौन कौन से लोग जो हैं अलग अलग टाइम पे इमर्ज करते हैं, ठीक है। तो जैसे अल बिरूनी है, ठीक है, अल बिरूनी जो है आते हैं 10th सेंचुरी में। देन वी हैव जो क्या कहते हैं अपना अकाउंट लिख के जाते हैं, नॉट ओनली ही राइट very sincere accounts of the Indian subcontinent, he also translates a lot of Sanskrit texts into Arabic and vice versa, which enables a lot of this knowledge to spread across the world, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका इंटरवेंशन था कि ही एक्चुअली केयर्ड इनफ टू लर्न संस्कृत एंड ही वाज एबल टू ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ दीज टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है ऑफ अल बिरूनी। तो अल बिरूनी इज इंडिया इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम लोगों को 10th 11th सेंचुरी का जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। ना सिर्फ ये लोग पॉलिटिकल उस टाइम के क्लाइमेट की बात करते हैं, बट वी ऑल्सो फाइंड रेफरेंसेस टू द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वर एक्सोटिक और पर्टिकुलर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे आपको रेफरेंस मिलेगा नारियल का, आपको रेफरेंस मिलेगा पान का, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ रेफरेंसेस दैट वर पेकुलियर टू a person who is living outside the Indian subcontinent, ठीक है। दूसरा आपको व्यक्ति मिलता है, इनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं एंड ही बेसिकली राइट अ बुक कॉल्ड रहेला, राइट। ही आल्सो प्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। और इब्न बतूता जो हैं ही इन दैट पर्टिकुलर वर्क ही आल्सो रेफर्स टू अ लॉट ऑफ अदर सिग्निफिकेंट इवेंट, सोशल हिस्ट्री के बारे में जो है बात करते हैं, स्लेव ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, सती की बात करते हैं। दीज काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें क्या है कि अल बिरूनी इज द पर्सन हु इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पीपल लाइक बर्नियर इज वेरी क्रिटिकल अबाउट इंडिया। तो आपको ये देखने को मिलता है कि बर्नियर के जो अकाउंट है दे आर वेरी क्रिटिकल, ठीक है। ही इज द वन हु इज कमिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी, शाहजहां के टाइम पे जो है आ रहे हैं, एंड ही इज बेसिकली राइटिंग अबाउट द मुगल दरबार एंड व्हाट आई काइंड ऑफ events, socio-political events are happening around him, ठीक है। तो ही इज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड बर्नियर की राइटिंग के बाद ही आपको क्या कहते हैं डिस्पोटिज्म का जो आइडिया है, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, दैट इज अ आइडिया दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ बर्नियर, ठीक है। बिकॉज ही वाज द वन हु सजेस्टेड दैट देयर इज नो political freedom, there is no economic freedom in this particular region, and all the resources are owned by the ruler. There is no concept of private property. All of this, which is basically falsified, but these are the kind of narrative that were propounded by scholars like Bernier. तो कैसे जो है ट्रैवलर्स के अकाउंट, ठीक है, इम्पैक्ट करते हैं काइंड ऑफ इमेजरी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है।
ये इस सेंस में आप लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली योर चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट, ठीक है। जितने भी स्कॉलर्स हैं, चाहे पहले अल्बिरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इस तरह से आप लोग को जो है रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, राइट। तो इसमें आप लोगों को जो है ये याद रखना है कि कौन सा स्कॉलर कब आया था और उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, किताब का नाम क्या और क्या लिखा है। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर यू, राइट। तो बेसिकली अल्बिरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, ये तीन चीजें हमको स्कॉलर के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। सिक्स चैप्टर will be that of Bhakti Sufi tradition, which deals with the socio-cultural history of this particular period, कि किस तरह के आपको socio-cultural history देखने को मिलेगी, ठीक है, इन द medieval period, ठीक है। तो अब भक्ति ट्रेडिशन के भी दो हिस्से हैं, ठीक है, सदर्न इंडिया एंड द नदर्न इंडिया। तो what all can be understand in the context of socio-cultural history? So it starts with a description of what you call the little and the great tradition, right? So Radcliffe एक scholar है, Radcliffe का idea है little tradition and great tradition. So little traditions are the traditions which are prevalent in different parts, local traditions, ठीक है। Great traditions are pan-Indian kind of tradition which are practiced all across the country, which have a larger kind of पॉपुलैरिटी, विच हैव अ लार्जर कल्चरल बेस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशन देयर इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ द लोकल एंड द ग्रेटर ट्रेडिशन। द स्मॉलर ट्रेडिशन, ग्रेटर ट्रेडिशन इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, दूसरा एक को इम्पैक्ट करता है। तो एट टाइम्स जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस होते हैं दे बिकम लोकलाइज, एट अदर टाइम लोकल ट्रेडिशन जो है दे बिकम सांस्कृतिक, ठीक है। दोनों चीजें साथ में काम करती हैं। तो जब हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कोनोटेशंस ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया में यू फाइंड टू सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन, द अलवर्स एंड द नयनर, विच बेसिकली मीन्स द वैष्णव ट्रेडिशन एंड द शैवाइट ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जब करेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि what kind of traditions were developed during the 7th to 12th century and afterwards in the southern India, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वैष्णव में जैसे मिलेगा, तो दिस चैप्टर डिस्कसेस द काइंड ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन दैट वर प्रेवलेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट कंट्री, ठीक है। तो उसमें आपको देयर विल बी सर्टेन रेफरेंसेस टेक्सचुअल सोर्सेज के, लाइक नलियरा दिव्य प्रबंधम 24 religious text, ठीक है, which is the Vaishnavite text. There we also find many references to the Bhakti scholars, ठीक है। सदर्न नॉर्थ इंडिया के स्कॉलर्स के नाम जनरली हमको पता होते हैं, ठीक है, चाहे वो कबीर हो गए, नानक हो गए, मीराबाई हो गए, ठीक है, नामदेव, ज्ञानदेव, दे आर वेरी पॉपुलर। बट सदर्न इंडिया में के जो भक्ति स्कॉलर्स हैं, दे आर comparatively lesser known in that context, they are known in southern India more, ठीक है। तो we have अपार सुंदरार, करेकाल, ठीक है, अक्का महादेवी, all these kind of scholars were associated with the भक्ति movement। तो इनमें कुछ शैवाइट थे, कुछ वैष्णवाइट थे। तो इस तरह का ट्रेडिशन जो है आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है, राइट। तो what kind of tradition were followed by the अलवर्स and the नयनार, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। क्या क्या टेक्स्ट फॉलो करते थे, what kind of कल्चरल प्रैक्टिसेस वर फॉलोड बाय दीज स्कॉलर्स, ये चीज आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। देन वी विल डिस्कस द नदर्न इंडियन भक्ति मूवमेंट। तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कबीर है, नानक हैं, मीराबाई हैं, ऑल दीज भक्ति, तुलसी हैं, तुकाराम है, देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ स्कॉलर दैट कैन बी डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो 13 to 15 16 सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है नदर्न इंडिया में वेरी सिग्निफिकेंटली द इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसमें भी जो है सगुण भक्ति शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा है, पीपल हु बिलीव इन गॉड, इन अ फॉर्मलेस गॉड, पीपल हु बिलीव्ड इन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। दोनों चीजें जो है अपनी अपनी जगह एक प्रेवलेंस रखती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। देन देयर आर विद इन द सगुण भक्ति शाखा देयर आर राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति, पीपल हु फॉलोड राम, people who follow Krishna, right? So all of this is also significant. Then we will move on to discuss the Sufi movement. ठीक है, तो Sufism is a movement that emerged in the 11th 12th century in India, ठीक है। तो it developed through the process of what you call silsila, ठीक है।
तो सूफी स्टार्ट का जो ट्रेडिशन है वो हम स्टार्ट करेंगे कि हु आर द सूफीज, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज की व्हाट एग्जैक्टली सूफी मीन, हाउ टू व्हाट एक्सटेंट दे फॉलो द शरिया, विथ व्हाट एक्सटेंट दे फॉलो द इस्लामिक कोड, ठीक है। और जब इस्लामिक कोड जब फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट अदर ट्रेडिशंस ऑफ सूफीज्म दैट इज प्रेवलेंट। तो उसमें जो है सिलसिला का जो पूरा ट्रेडिशन है, ठीक है, पीर और मुरीद का, एंड हाउ बेसिकली देवर डिफरेंट सिलसिला डेवलप, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए चिश्ती सिलसिला, राइट। चिश्ती, सूरावर्दी, कलंदरी, दीज आर द सिग्निफिकेंट सिलसिला, ठीक है। अब उसमें जो है चिश्तीज आर सिग्निफिकेंट, तो चिश्ती में आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिलते हैं, राइट। तो दे हैव देयर ओन बेसिकली खानकाज और बेसिकली हाउस स्पाइसेस वेयर बेसिकली देयर ऑल द प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिस ऑफ सूफीज्म, ठीक है। जितने सारे समा और महफिल होते हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। देन आफ्टर द डेथ ऑफ द सूफी सन, देयर डेथ ऑफ द प्लेस इज बेसिकली कमेमोरेटेड ईच ईयर एट उर्स, ठीक है। तो किस तरह तरह के आपको कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं, किस किस तरह के आपको आइडियाज निकल कर आते हैं यहाँ से, राइट, फ्रॉम भक्ति मूवमेंट टू सूफी मूवमेंट, एंड हाउ बेसिकली ऑल दिस मूवमेंट वर टेकिंग प्लेस इन ड्यूरिंग द पीरियड इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी अ पीरियड ऑफ लार्ज सोशो कल्चरल चेंजेस, ठीक है। आपको हिंदू मुस्लिम्स का जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। तो उन दोनों कल्चर्स में जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हाउ बेसिकली दे आर केटरिंग टू द नोशन ऑफ द भक्ति एंड द सूफी संत, कि भक्ति में क्या, भक्ति संत क्या बात कर रहे हैं, सूफी संत क्या बात कर रहे हैं, विच आर द सिमिलैरिटी ऑफ द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, हर चीज़ को जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। मेनी ऑफ दीज भक्ति सेंट्स वर बेसिकली बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट और लोअर क्लास कम्युनिटी, चाहे कबीर हो, ठीक है, चाहे मीराबाई, मीराबाई तो वुमेन, ठीक है, बट रायदास हूँ, ये बिलोंग टू द लोअर कास्ट फैमिलीज। तो कैसे आप लोग जो है कास्ट सिस्टम को, क्लास हायरार्की को चैलेंज कर रहे हैं, जेंडर आइडियाज को क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, राइट। सो ये चीज़ आप लोग जो है इस पूरे चैप्टर में करेंगे। देन वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हम्पी क्या है, हम्पी इज अ साइट इन कर्नाटक, ठीक है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो हम्पी कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दैट इज कहते हैं प्रेवलेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्या क्या आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ क्या है कि जब आप ये हम्पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाउ वॉज इट डिस्कवर्ड, किस तरह से इसको, इसका जो है आपको डिस्कवरी देखने को मिलती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है, देयर आर सर्टेन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कवर्ड, राइट। तो उसमें आप लोगों को ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, ठीक, सर कॉलिन मैकेंजी, ठीक, सर कॉलिन मैकेंजी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्कॉलर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब कॉलिन मैकेंजी क्या थे, कॉलिन मैकेंजी वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल हु अलोंग विद हिज ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, अलोंग विद हिज टीम, ठीक है, उन लोगों ने सारे इमेजेस बनाए, ही बेसिकली क्लिक मेड स्केचेस, ठीक है, कैसे जो है उन्होंने हम्पी के ruins को डिस्कवर करके दे बेसिकली क्रिएटेड द आइडिया ऑफ दिस न्यू कहते हैं सिविलाइजेशन जो विजयनगर एम्पायर है। एंड विजयनगर एम्पायर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट एम्पायर बिकॉज इट वाज सराउंडेड बाय ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द सल्तनत, ठीक है। उनके बीच में विजयनगर वाज वन ऑफ द रेयर हिंदू स्टेट इन बिटवीन ऑल द अदर इस्लामिक स्टेट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर कैसे इमर्ज किया 1336 में, ठीक है, एंड टिल द टाइम इट डिक्लाइंड in the late 16th and the early 17th century, this is something significant in this context, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पहली चीज ये कि विजयनगर एम्पायर किस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है। हरिहर एंड बुक्का, टू ब्रदर्स हु एक्चुअली फाउंडेड द एम्पायर, who are the significant dynasties and who are the significant rulers of this particular period,
तो उसमें आपको सबसे सिग्निफिकेंट रेफरेंस मिलेगा ऑफ द किंग कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय हु रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1530। ठीक है, इसमें आप लोगों को रेफरेंस मिलेगा इज बेसिकली इंटरैक्शन विद डिफरेंट पीपल। ठीक है, विद द फॉरेनर, द यवनर्स। ठीक है, यवंस के साथ उनका इंटरैक्शन हुआ था। ही हैज इंटरैक्शन विद द हॉर्स ट्रेडर, चेटियार जिनको शेट्टीज कहते हैं, उनके साथ उनका इंटरैक्शन हुआ। बेसिकली हाउ ही यूज टू ट्रेड फॉर द हॉर्सेस, राइट। वी ऑल्सो फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ सिस्टम कॉल्ड नायकन सिस्टम। तो नायगन सिस्टम किस तरह से जो है प्रेवलेंट था, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑल द पॉलिटिकल सेटअप दैट वी फाइंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आप लोग डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हाउ बेसिकली दे वो इकोनॉमिकली एंड एग्रेरियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से डेवलप थे, पर्टिकुलरली बिकॉज विजयनगर एम्पायर वॉज लोकेटेड अराउंड द area what you call the Tungabhadra river in the Kaveri delta. ठीक है, that was the region which was always remained a point of contestation between the विजयनगर and the बहमनी। ठीक है, तो हमेशा जो है प्रॉपर आपको एक कन्फ्लिक्ट इन रीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता रहेगा। तो हाउ इरिगेशन, एग्रेरियन कल्चर को किस तरह से डेवलप किया, इरिगेशन पैटर्न को किस तरह से डेवलप किया, ठीक है, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देन विल टॉक अबाउट द कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि हड़प्पा जो विजयनगर एम्पायर है ओके उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें आपको आर्किटेक्चर का देखने को मिलेगा रेफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स दैट वर बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय द विजयनगर स्टेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विरूपाक्ष का रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है महानवमी मंडप का रेफरेंस मिलेगा। यू विल फाइंड रेफरेंस टू हजार हाथी टेम्पल का रेफरेंस। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल दैट वर प्रेवलेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स दैट वर कॉन्सिक्रेटेड। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल दैट वर फॉर्मुलेटेड, फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको विजयनगर के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो यू विल बी बेसिकली डिस्कसिंग द ऑल राउंड द एरिया ऑफ द विजयनगर एम्पायर and how it was seen by the different traveling accounts of the travelers। तो इसमें आपको अब्दुल रज़ाक मिलते हैं, निकोलो कॉन्सी मिलते हैं, डोमिनिगो पेस मिलते हैं। ऑल दीज पीपल केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं अपने आप में बहुत ही ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड हाउ इट डिक्लाइंड ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, हाउ विजयनगर एम्पायर फेल इनटू डिक्लाइन। ठीक है, पर्टिकुलरली आफ्टर द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी इन 1565। किस तरह से विजयनगर एम्पायर लॉस्ट इज ग्लोरी एंड बेसिकली इट गॉट रिड्यूस टू अ वेसल स्टेटस बाय द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, ये चीज़ आपको सिग्निफिकेंटली इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, all of this is covered within the ambit of the Vijayanagar Empire. Now, the last chapter of the what you call the medieval history is that of Mughal period. Earlier there used to be two chapters on the Mughal history, one particularly dealing with the Ain Akbari and the kind of political history, and the other dealing with the administration. ठीक है, now it has been reduced to one chapter. So we have basically Ain Akbari के reference में कि how basically Ain Akbari got written. आइन अकबरी लिखी थी बाय हिज कोटियर कॉल्ड अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो है बेसिकली डील करते हैं टू द हिस्ट्री ऑफ द रीन ऑफ अकबर। ठीक है, बेसिकली पूरा ना कोर्ट क्रॉनिकल्स एक तरीके से लिखे जा रहे हैं। ठीक है, द अकाउंट ऑफ द होल पीरियड ऑफ अकबर। ठीक है, वो सारे अकाउंट जो हैं आप लोगों को आइन अकबरी में देखने को मिलते हैं। तो हाउ बेसिकली दीज काइंड ऑफ वर्क्स वर कमीशन बाय द मुगल किंग। अब मुगल जो है उनका आपको हिस्ट्री स्टार्टिंग में मिलता है कि मंगोल से किस तरह से जुड़े हुए थे एंड हाउ बेसिकली देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग देयर ओन जीनियोलॉजी। ठीक है, अपने जो है कहानियाँ अपने रीन पर जो है लिटरेचर लिखवा रहे हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम बाबर, बाबर तो खुद ही लिखते थे तजुक बाबरी।
देन हुमायूं के नाम पे हुमायूं नामा, अकबर के नाम पे अकबरनामा। तो आईने अकबरी इज द पार्ट ऑफ अकबरनामा, ठीक है। देन वी हैड जहांगीरनामा, तुदुके जहांगीर, विच वाज अगेन रिटन बाय जहांगीर हिमसेल्फ। देन वी हैव पातशाहनामा ऑन शाहजहां, वी हैव आलमगीरनामा ऑन औरंगजेब। So how these court chronicles are becomes a very significant source for us to understand the history of the Mughal period, ठीक है। तो मेडिवल सेंचुरीज को समझने का एक बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स आपको इन कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। एंड आईने अकबरी वाज अ वास्ट टेक, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में जो है आप लोगों को 2000 खाली इमेजेस देखने को मिलती है। तो देयर वाज अ होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग दीज काइंड ऑफ वर्क्स, ठीक है। इट वाज नॉट रिटन बाय अ सिंगल पर्सन इन मैन्युस्क्रिप्ट एंड बस लिख दिया, ठीक है। दे वर बेसिकली कमीशन वर्क which were dictated and they were illustrated. There was a whole कारखाना, ठीक है, the whole workshop was arranged in order to commission a particular manuscript, ठीक है। this is very significant thing in this context, ठीक है। तो how a particular chronicle gets written down, how basically they manifest the, they reflect the ideas of the king, ठीक है, ये सब चीजें भी important है। then we move on to what आईने अकबरी talks about, how आईने अकबरी talks about the political and administrative history of the Mughal period। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो राजा के बारे में बोल रहा है, इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी दैट इज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली बिकॉज इट इज डीलिंग विद द पीरियड ऑफ अकबर, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, ठीक है। इट डज टॉक अबाउट द अर्लियर प्रीसीडिंग पीरियड, बट it does it in a very superficial way, the mythical way. So the actual historical narrative that we find of that particular period is related to the बेसिकली द पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है। तो उसमें आपको एग्रेरियन स्ट्रक्चर मिलता है, क्या क्या क्रॉप्स उगाए जाते थे, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर होता था, हु आर द डिफरेंट क्लासेस दैट वर प्रेवलेंट, हाउ द लैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो उसमें कितनी तरह की जागीर मिलती थी, व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम, राइट, व्हाट वाज द काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिट दैट वर फॉर्म्ड, राइट, व्हाट वाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से होती थी, कोर्ट किस तरह से चलता था। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन रिटन डाउन इन मच डिटेल इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ये जो चैप्टर है कंपैरेटिवली वेरी डेंस चैप्टर, व्हाई, बिकॉज इट डील्स विद अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, इट डील्स विद अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। किस की मेडिवल सेंचुरीज में किस तरह के आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर as compared to the preceding and the succeeding period, ठीक है। and how basically there were different kind of provision that were made by Akbar during the 16th century in order to facilitate the common people, be it agrarian people, be it the villages, ठीक है। किस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको कवर की गई हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट द पर्शियन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसमें किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो बहुत आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स, खुद काश्त, फाही काश्त, वतन जागीर, तनका जागीर, राइट, और लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो योर लास्ट पार्ट ऑफ योर मेडिवल हिस्ट्री विल बी कवर्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज जो है मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री, क्या क्या आपको मॉडर्न हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली आपके अगेन 4 चैप्टर हैं, राइट। इट स्टार्ट विद लेट 18th सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज अप टिल 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ टिल द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों को 4 चीजों में डिवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। द सेकंड चैप्टर डील विद द revolt of 1857, third deals with the Indian national movement,
and fourth the making of the constitution. So largely it deals with the idea of colonization and decolonization. So first chapter deals with the process of colonization, right? Not the wars. We are not discussing the Battle of Plassey or Battle of Buxar. It has been established that okay, Britishers have already conquered Indian subcontinent. Okay. Now, what happens after Britishers have acquired the Indian region? So initially, the rule of Indian subcontinent is located within the margins of the three what you call the major cities, Kolkata, Madras, and Bombay, right? And how particularly in Kolkata, the Bengal Presidency, Chief Presidency. So the Bengal Presidency is a major center of administration for the Britishers. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो starting होती है that आप chapter starts with the description of the king of Bardhaman. ठीक है, and how he basically is able to negotiate and कहते हैं cheat the Britishers. ठीक है, in order to claim their land. And why it happened? Because a lot of these zamindars lost their land in the process of the permanent settlement system, right? Now, why did this permanent settlement system occurred is basically discussed later. ठीक है, कि आप लोगों को बताया गया है कि Britishers were falling into huge debt despite the fact that they won most of the wars. ठीक है, तो जब आपने लड़ाइयाँ जीत ली फिर भी आप कर्जे में हैं, तो you have to make certain provision, you have to make certain policies in order to provide themselves with adequate avenues of revenue. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? You have to make certain changes, you have to make certain provisions in agriculture, because India largely was an agrarian state. ठीक है, so to get major land revenue, they devised this idea of permanent settlement system, which was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? Then this particular act considered the zamindar as the owner of the land. ठीक है, and it is their responsibility to basically collect tax revenue, give away 10/11 to the Britishers, and keep 1/11 for themselves, right? And it was fixed for a large period of time, which didn't. So basically, they don't have to pay multiple times, okay, but they have to pay for a huge amount at particular period. Okay, there was also a sunset law that you have to pay within that stipulated time period before the sunset, or the amount will be doubled. Due to these provisions, most of the zamindars were not able to pay off these money, okay, and had to their lands were basically transferred to someone else, farmed out. Okay, so many of these zamindars lost their land. So यहाँ पर they have also discussed the emergence of the landed aristocracy, the landed middlemen. ठीक है, तो you have to discuss you have to remember certain political names. ठीक है, जमींदार, जोतदार, ठीक है, the रैयत, ठीक है, the farmers. So because of the very stringent policies, the stringent framework of the system, how the permanent settlement system failed. Then we have the Rayyatwadi system that were introduced in the early 19th century, ठीक है, by people like Thomas Munro. ठीक है, so Munro introduced in the Madras Presidency particularly, ठीक है, wherein the farmers were considered to be the people from whom the land revenue will be extracted. ठीक है, तो land revenue किससे लिया जाएगा? आप लेंगे किसानों से, not from the जमींदार. ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा लाद दिया, जिस कारण फार्मर्स आर ऑल्सो फेसिंग वेरी सीवियर प्रॉब्लम. तो जब आपने जमींदारों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब आप किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो द प्रॉब्लम वाज नॉट एक्चुअली रिजॉल्व इवन इन द रैयतवाड़ी सिस्टम. तो पहले आप परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप रैयतवाड़ी डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड विल बी द महलवाड़ी सिस्टम. ठीक है, विच वाज कहते हैं राजमहल की पहाड़ियों में और यूपी वगैरह के एरिया तक आपको महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है, वेयर इन you are not taking resources from particular person or family, but rather a cluster of villages, ठीक है, which are called the mahals, right? So all these three systems, what were the features of these political system?
व्हाट वर द प्रोज एंड द कॉन्स, ठीक है, क्या क्या इनमें दिक्कत थी, क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें थी, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ दिस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। जब आपने ये डिस्कस कर लिया तो उसके बाद जो है यू विल बी डिस्कसिंग द role of the problem with the tribal population, how basically the Britisher dealt with the tribal classes, ठीक है। इसमें आपको पर्टिकुलर रेफरेंस दिया है ऑफ द रीजन ऑफ संथाल, ठीक है, द संथाल कम्युनिटी, द संथाल ट्राइब विच वर बेस्ड इन द दिक्कूज, ठीक है, द लैंड, ठीक है, इन द नियर द राजमहल पहाड़ी, द रीजन ऑफ भागलपुर, ठीक है, इन जगहों में जो है स्प्रेड थे, एंड हाउ ब्रिटिशर्स सॉ ऑल द वेस्ट लैंड, द फॉरेस्टेड लैंड एज देयर ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे वो लोग जो है उसको एक्वायर करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, एंड हाउ दे एक्वायर्ड इट इवेंचुअली, ठीक है, बाय डिस्प्लेसिंग द संथाल, ठीक है, उनको वादा किया कि विल गिव यू द लैंड एट डिफरेंट फर्टाइल रीजन इन डिफरेंट एरिया, ठीक है, एंड हाउ संथाल्स फेल्ट चीटेड in this negotiation, right? So the whole conflict that arise from this context, okay, that has been discussed in the negotiation with the tribal population, how transform the nature of the tribal classes, how transform the tribal politics, ठीक है, और उससे संथाल रिबिलियन किस तरीके से इमर्ज होता है, that actually becomes the point of दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, 4-5-6 चीज़ें जो हैं आप लोगों को डिस्कस करनी है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ट्राइबल पॉपुलेशन, ओवरऑल द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी, एंड द पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट्स आर द रेवेन्यू रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे हमको पता चलता है कि इन द लेट 18th एंड द अर्ली 19th सेंचुरी what were the problems and what were the policies of the Britishers were prevalent, कैसे वो उनको negotiate किया जा रहा था, ठीक है, and how Britishers were able to win over the क्या कहते हैं capture all these regions, ठीक है, and exploit the farmers and the zamindar, and how the zamindars and the farmers and local population lost their political and economic resources because of the ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, ये सारा जो अनरेस्ट पैदा होता है इन सब चीज़ों के कारण, ठीक है, इट इवेंचुअली गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज द न्यू थिंग्स दैट वी डिस्कसिंग, ठीक है, विच इज बेसिकली द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। The revolt of 1857 is I think the topic that is largely very much known to almost all the classes because it has been discussed so many times in different times, ठीक है, 8th क्लास में भी इसे पढ़ते आ रहे हैं 1857, ठीक है, एंड 1857 का रिवोल्ट में जो आप 12th में पढ़ेंगे, द डिफरेंस इज बेसिकली टिल नाउ वी आर बेसिकली डीलिंग विद व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द what were the events and what were the leaders, what were the implications, ठीक है, what was the result of the 1857 revolt. Now here you will also talk about the theories, ठीक है, was it a revolt, first thing. Another thing is how the revolt spread across the country, ठीक है, was it a pan Indian revolt, ठीक है, the role of rumors, ठीक है, द रोल ऑफ रिलीजन इन फैसिलिटेटिंग द रिवोल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को 1857 के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेंगी। तो यू विल नॉट जस्ट डिस्कस द पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, बट ऑल्सो द इकोनॉमिक, तो देर आर पॉलिटिकल कॉजेज but also economic causes, there are social religious causes, there are military causes, there are intermediate causes. So all of these factors that are responsible, ठीक है, when they are talking about cartridges that with this pig and cow fat, was it really the fact or it was a rumor that actually spread across the region, right? Also, when we discuss about the revolt, how the Britishers saw the same revolt. इंडिया के हिसाब से तो इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट रिवोल्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका एक जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इट लाइज विद इन द नेशनलिस्ट डिस्कोर्स ऑफ इंडिया, बट
how the Britishers were seeing the same revolt. For them, the Lucknow siege, the siege of Lucknow was seen as a very barbaric act by the Indians, which need to be retaliated with the similar brute force. ठीक है? So when the Delhi was captured, it was ransacked, it was destroyed, it was humiliated to another extent. ठीक है? And how basically it actually led uh, all the ransacking to a kind of establishment of the British rule in a very significant way. अभी तक क्या हो रहा था? 1857 से पहले Britishers had captured very significant part of the Indian subcontinent, but they were not exactly directly ruling in these areas. Many of these areas were being captured by the Britishers through indirect means. चाहे वो डलहौजी का आपको डलहौजी का प्लान हो, ठीक है, आप लोग के जो है ऑल द काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रोविजन पैरामाउंट ब्रिटिश पैरामाउंसी हो, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट वर प्रेवलेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उनके थ्रू जो है इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे. अवध का उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया ऑन द बेस ऑन द सेइंग दैट कि अवध के रूलर ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया सतारा में, झांसी में, लखनऊ में, कानपुर नॉट लखनऊ कानपुर में, ठीक है. तो ऑल दीज टेरिटरीज जहाँ पे इन लोगों ने इस तरह के प्रोविजंस लगा के दे वर एबल टू कैप्चर दोज टेरिटरीज, ठीक है. तो आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर टेक्निकली ओन ऑल द एरिया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ना सिर्फ ये, अभी तक जो रूल कर रही थी वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी थी. आफ्टर 1857 रिवोल्ट द क्वीन हैज टू इंटरवीन, एंड आफ्टर 1858 जब रूल हुआ तो बेसिकली इट वाज द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी. तो टेक्निकली इंडिया बिकेम ऑफिशियली अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है. इसमें आपको ये भी देखने को मिला है द रूल ऑफ रूमर्स, जैसे आपको रूमर्स, जैसे चाहे वो कार्ट्रेज वाला रूमर हो, रूमर्स अबाउट द आटा द फ्लोर बेसिकली मिक्स विद काउ एंड पिग कहते हैं बोन्स, या फिर आपको चौकीदार की रोटी देने वाला रूमर. all these rumors were very significant in providing a kind of it facilitated the role of the revolt. ठीक है, रिवोल्ट को जो है दूसरी जगहों में फैलाने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन रूमर्स ने, ठीक है. तो बेसिकली कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन, व्हाई द रिवोल्ट फेल टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि रिवोल्ट एक्चुअली फेल क्यों हुआ, व्हाट वाज द शॉर्ट कमिंग, क्यों जो है रिवोल्ट वाज नॉट स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट वाज restricted in certain parts of the country, ठीक है. as to basically it basically question the idea that whether can we call the revolt pan Indian revolt, can we call it the first war of independence or not, ठीक है. ये अपने आप में जो है आप लोग सिग्निफिकेंट करेंगे. इट इज दिस इज समथिंग जिसमें आपको फैक्चुअल तो है ही बट इट्स वेरी थीमेटिक ऑल्सो. तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों को थीमेटिकली भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है. यू विल बी मेंशनिंग अ लॉट ऑफ दिस सोर्सेज जो आप लोगों को 1857 से जुड़े हुए दिए गए हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ कार्टून्स दैट आर मेंशन्ड दैट वर प्रिंटेड इन द लंडन न्यूज़पेपर्स, और you have the government records how they were treating this revolt, or the account of people like Ghalib, ठीक है, who saw the ransacking of Delhi from his own eyes and wrote an account about it, or the description of the eyewitnesses of the 1857 revolt. ये सारे जो हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं रिगार्डिंग द 1857 रिपोर्ट एंड हाउ इट नीड्स टू बी सीन बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, ठीक है. तो इट स्टार्टेड व्हाट यू कॉल द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है. तो द नेचर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज. अभी तक क्या हो रहा था कि वी हैड अ काइंड ऑफ किंगशिप स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फ्यूडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अब धीरे धीरे करके हाउ डू वी सी द डिक्लाइन ऑफ द princely states and the emergence of the new middle class that became the backbone of the Indian national movement in the late 19th and the early 20th century. ये चीज़ें हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे इन द चैप्टर 11, ठीक है. हम 11 चैप्टर में ये पूरा देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का किस तरीके का आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है. महात्मा गांधी ने क्या क्या सिग्निफिकेंट जो है आपके रिवोल्ट किए, ठीक है. नाउ
why it basically centers the whole narrative around Mahatma Gandhi, basically because even though the Indian national movement started even before the coming of Gandhi, Mahatma Gandhi made it a nationalist pan Indian movement. ठीक है, तो महात्मा गांधी के आने से पहले किस तरह के मूवमेंट चल रहे थे एंड इवेंचुअली महात्मा गांधी के आने के बाद हाउ द होल मूवमेंट वाज ऑल्टर्ड इन दैट सेंस. ठीक है, तो रिवोल्ट आप लोग जब बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 टिल द इमर्जेंस ऑफ गांधी इन 1914-15. ठीक है, ये जो मूवमेंट था, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल, देयर वर लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बिटवीन द मॉडरेट, द एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, ये लोग अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आइडियोलॉजिकली एंड देयर वाज अ लैक ऑफ सस्टेन पैन इंडियन एफर्ट. ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मॉडरेट्स हैं दे आर बेसिकली मोर कंसर्न्ड अबाउट पॉलिसीज, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अपील्स, they are more concerned about different kind of provisions rather than having a full-fledged idea of a revolt. ठीक है, तो violent uprising के अभी वो support में नहीं थे. Then there were other side of the radicals who believed in violence for seeking full independence. ठीक है, so on one side we have people like Firoz Shah Mehta, Dadabhai Naoroji. On the other side we have Bal Gangadhar Tilak or Bipin Chandra Pal or लो और बेसिकली लाल लाजपत राय. ठीक है, तो 1905 द बंगाल स्वदेशी movement was one of the earliest representation of what can become a pan Indian movement, but it took Mahatma Gandhi's charismatic leadership to provide a kind of political intervention, a political discourse. ठीक है, to the Indian national movement. ठीक है, तब इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक तरीके से गति देने का काम किया. सो हाउ इट स्टार्टेड, तो महात्मा गांधी का क्या बैकग्राउंड था. ठीक है, हाउ बेसिकली फ्रॉम अ लॉयर. ठीक है, who did his law from London, who practiced in South Africa, from there to emerging as a political leader and that to other downtrodden classes. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में रिवोल्ट करने सत्याग्रह लीड करने के बाद ही केम टू इंडिया. ठीक है, एंड ही वेंचर्ड इनटू द traveling across the India and getting to know the realities, the harsh realities of the Indian subcontinent, right? And there he identified the need to integrate India, ठीक है, and create a pan-Indian kind of apparatus. वो पैन इंडियन स्ट्रक्चर जो पैन इंडियन मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा. द पैन इंडियन मूवमेंट विल बी क्रिएटेड बाय ब्रिंगिंग अ थीम दैट कैन यूनाइट एवरीवन, पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लास, रिलीजियंस, एथनिसिटी, जेंडर टुगेदर. ठीक है, ही यूज द स्पिरिचुअल फोर्स, ही क्रिएटेड एन ऑरा ऑफ अ महात्मा. ठीक है, तो वी हैव रेफरेंस टू व्हाट यू कॉल शाहिद अमीन. शाहिद अमीन का इसमें बहुत ज़्यादा जो है रेफरेंस दिया गया है. ठीक है, द गांधी एट महात्मा. Why were people like eventually attracted to Gandhi? Gandhi was not doing any violent act. He was not using any brutal force. But still, millions of people believed that Mahatma Gandhi will be able to get us independence because his aura was not that of a revolutionary. His aura was that of a Mahatma. So he was a political figure who had a spiritual vibe, right? So there were a lot of rumors that was spreading about Mahatma Gandhi that he has magical powers, he can basically uh, uh, grant wishes, he can destroy things, a lot of things. Okay, that he created a kind of mysterious imagery of Mahatma Gandhi. Okay, which helped in him in basically negotiating, which helped him in mobilizing the large number of support from the people. So from starting from the earlier Gandhian movement in Champaran, Heda, Ahmedabad till the national movement. ठीक है, तो आपको नेशनल मूवमेंट में 3 नेशनल मूवमेंट डिस्कस करेंगे. ठीक है, बी इट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये कैसे मूवमेंट जो है इनिशिएट किए गए, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दीज मूवमेंट. ये तो चीज़ें आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं. ठीक है, 10th में आपने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस वगैरह सब पढ़ा है. But here you will be discussing them in the context of the Gandhian lenses. How it used the Gandhian ideas, ठीक है, of satyagrah, truth, non-violence, all these ideas
ठीक है, एंड हाउ गांधी वाज एबल टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। अब इसमें आपको सोर्सेस क्या मेंशन मिलेंगे, ठीक है, द राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। गांधी और राइटिंग्स का मतलब ये नहीं कि गांधी ने किताबें लिखी, गांधी ने तो कुल मिला के 2 ही किताबें लिखी हैं, ठीक है, but he has written so much material, so much content that there are around 40 voluminous volumes of Mahatma Gandhi's writing. ठीक है, it included letters. These letters were not supposed to be intimate, confidential information. They were written down in order to be published in the future. So they were very much part of a public discourse. ठीक है, so these letters or these accounts or these archival sources are very significant source for us to understand the Gandhian politics. ठीक है, तो बेसिकली ये एक आपको एक कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है कि हाउ बेसिकली गांधी लेड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। गांधी के बारे में क्या लिखा जा रहा था, हाउ गांधी वाज एबल टू कहते हैं इन्फ्लुएंस सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड हाउ इवेंचुअली इट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ बेसिकली आर्काइव्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब आप मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, जब आप इस पीरियड की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ऑल ऑफ देम प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरह से खड़ा किया जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट किस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है न्यूज़पेपर्स का था, बिकॉज दे वर रिटन बाय एंड दे वर कंसीव्ड बाय पीपल who themselves were nationalists. Many of almost all of the leaders of the Indian national movement were somehow associated with some or other newspaper. महात्मा गांधी खुद बहुत सारे पत्रिकाएं चलाते थे, इनमें हरिजन बहुत प्रमुख था, यंग इंडिया, हरिजन, these were the papers. ठीक है, we have people like बाल गंगाधर तिलक, we have Aurobindo Ghosh, we have Ganesh Shankar Vidyarthi, right? We have Gopal Krishna Gokhale. All of them had some or other newspaper published by them. ये न्यूज़पेपर 2 तरह के काम करता था। एक तो ये बेसिकली दे बिकेम अ माउथ पीस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। जो भी लोग होते थे उनके जो है विचारों के स्पंदन के लिए, विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स। ठीक है, सेकंड थिंग बेसिकली it was a kind of the verbal form of protest against the British authority. कई सारे न्यूज़पेपर बंद भी करवाए गए, कहीं पे प्रतिबंध भी लगाया गया, बट बेसिकली इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो हाउ न्यूज़पेपर्स कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ historical writing, because these are sources which reflect the political ideas that were prevalent during the period, and how different newspapers can actually form opinions based on their own ideologies. जब हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर है, they are unbiased, they are not unbiased, they have their own perception, they have their own stance. ठीक है, and particularly because they are dealing in the period of Indian national movement, यहाँ ये चीज़ बहुत significant हो जाती है कि टू अंडरस्टैंड कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो पीरियोडिकल्स हैं, कौन सा परसेप्शन फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आर दे प्रो रेवोल्यूशनरी और दे आर प्रो गवर्नमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच वी सी द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इट्स एटर्निटी, राइट। लास्टली वी हैव द लास्ट चैप्टर। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले अगेन आपके 2 चैप्टर बीच में काटे गए हैं। वन चैप्टर दैट डेल्ट विद द क्रिएशन ऑफ द टाउन्स। ठीक है, उसमें जो पूरा जो है अर्बन सेंटर्स एंड टाउनशिप का डेवलपमेंट था, दैट हैज बीन कट डाउन। सेकेंड चैप्टर दैट हैज बीन कट डाउन इज द चैप्टर ऑन पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन वाला जो चैप्टर है वो काट दिया गया है, इसके बदले में आपको सीधा यहीं पे ख़त्म किया जाता है ऑन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, वाज मेड, ये आप लोगों को पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, सबसे मेन चीज़, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। ठीक है, एंड व्हाट वाज द कहते हैं इम्प्लीकेशन एंड द रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिबेट। ठीक है, दिस इज अ चैप्टर विच इज मोर थ्योरेटिकल इन नेचर। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी नोन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ बुक, अ चैप्टर कैन नॉट encompass।
ठीक है, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन जो था असेंबली में कितने मेंबर्स थे, हु आर द सिग्निफिकेंट मेंबर्स, क्या उनके रोल थे। एक बहुत जो बड़ी गलती अक्सर लोग बच्चे करते हैं, ठीक है, दे आर कन्फ्यूज बिटवीन द रोल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, किसी से पूछो रैंडमली कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे विल से बी आर अम्बेडकर, विच इज रॉन्ग, right? So it's a very important, very small thing, but it's very important to note because this silly mistake is basically what people make. ठीक है कि ये लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना बोल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है चेयरमैन बना देते हैं, whereas डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairperson of the Indian Constituent Assembly, whereas B R Ambedkar was the chairperson of the drafting committee of the constitution. So he drafted the constitution. He was not the chairman person of the assembly, right? So how basically the constituent assembly was very significant in order to create a constitution, a written constitution in India. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रिटिशर्स वर प्रोवाइडिंग देम द फ्रेमवर्क। ब्रिटिशर्स जो है आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन में तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मिक्स बैग। ठीक है, मिक्स बोरो बैग बिकॉज इट हैज बोरोड एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इनकॉर्पोरेटेड ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन विद इन इट एम्बेड। तो अगर आप बोलेंगे प्रियम्बल है तो वो बिल ऑफ राइट्स आपको अमेरिका में मिलेगा। आपको जो है अगर 5 ईयर प्लान बोलते हैं तो दैट विल बी टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर। ठीक है, आपको जो है स्विट्जरलैंड के उससे कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमेंट लिए गए हैं। ठीक है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमेंट लिए गए हैं, राइट। ब्रिटेन के उससे जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेशन। उसका एक बहुत मेजर जो आइडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ Indian Constitution was conceptualized. Yeah, what was the need of the Indian Constitution? So, was the 1946 Constituent Assembly was the first Constituent Assembly? No, it was not. ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1928 created one of the earliest draft Constitution of India. That Constitution was not put into use, but that provided us the impetus कि इंडिया जो है हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन के लाइंस पर ही सोच रहा था। ठीक है, द राइट दैट अदर कंट्रीज गेव टू सिटीजन ईयर्स लेटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव देम द राइट एट द वेरी आउटसेट। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे दैट नीड्स टू बी डिस्कस, चाहे वो क्लास की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, रिलीजन की बात हो। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी पुट इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, और जब आप लोग ये सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क किया जाए, देयर वर पीपल हु हैड डिफरेंट स्टेक। ठीक है, अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड्स थी, हाउ टू बेसिकली इनकॉर्पोरेट ऑल दोज काइंड ऑफ डिबेट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैड मल्टीपल मीटिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स के बेसिस पे दे क्रिएटेड ड्राफ्ट, दे क्रिएटेड सर्टेन डिबेट्स। ठीक है, 12 very fat volumes of debates on constituent assembly was prepared. ठीक है, based on which they came into a uniform provision कि हम ये चीज़ें हम अपने देश में देखना चाहते हैं। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग लैंग्वेज, वेदर देयर शुड बी अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और नॉट। इवेंचुअली सदर्न इंडिया में जो है इस चीज़ को लेके बहुत चैलेंज किया गया कि there should not be any particular language that should be incorporated as a national language, and we should try to maintain and create a semblance of a secular and inclusive society. तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, रिलीजन इंडिया का कोई नहीं रखा गया। ठीक है, इवन दो लैंग्वेज पे बहुत डिबेट हुआ था, महात्मा गांधी वांटेड हिंदुस्तानी टू बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर अदर पीपल हु वांटेड इंग्लिश। ठीक है, इवेंचुअली नो लैंग्वेज वाज कंसिडर्ड टू बी language of the nation, right? So how Indian Constitution came into force, right? 1949 में 26 नवंबर को आपने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, साइन कर दिया, बट इट वाज नॉट implemented till the 26th January 1950. Why 26th January was taken up as a date for the Indian Constitution was because Indian Constitution was
जब 1929 में दे प्रोवाइडेड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, राइट? They decided upon the date 26 January 1930 as the Independence Day. That 26 January 1930 will be celebrated as the Independence Day of India, right? They didn't receive, they didn't become independent on 26 January, but on that date they celebrated, and that became a point of starting point of what you call the civil disobedience movement. ठीक है, तो 26 January was very significantly associated with the Indian national movement. That's why this particular date was taken up for for implementing the constitution, which became the Republic Day of India. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं? फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, हु वर द प्रोमिनेंट पीपल, ठीक है? देन व्हाट वर द मेजर डिबेट्स दैट वर सराउंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एंड हाउ इट वाज रिजॉल्व, ठीक है? हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलेंगी। तो इस तरह से आपके 12 चैप्टर्स जो हैं ये सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है? दीज आर ऑल everything that you need to do in this particular chapter. Don't just focus on NCERTs because NCERT provide just 15-20 pages of this material. ठीक है, जब आपको MCQs छांटने पड़ेंगे तो there will be a lot of information that can be dealt with in this particular context. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, we will basically discuss all these topics in a very sincere way. We will try to understand कि क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है इसमें डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और what all can be what all important things are need to be discussed in the class. So we will be having separate lectures for all these topics, ठीक है? जिससे कि आप लोगों के प्रिपरेशन जो है में हेल्प हो सके, ठीक है? तो if you are taking up this course, keep preparing, start preparing for your exam, and this after you prepare this exam, for this exam will help you in with PYQs, all the MCQs, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाए कि पेपर कैसे आप लोगों को करना है, कितना प्रिपेयर करना है, एंड हाउ टू अचीव अ फॉर्मिडेबल गोल ऑफ सिक्योरिंग अ गुड पोजीशन इन CUET UG एग्जाम, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।